تو میں نے تقریباً کوئی 5 مہینے چندے نہیں دیے مجھے، میں نے صدر صاحب کو ہاں تو پھر وہ آپ کے مرزا صاحب کے فرمان کے خلاف کر رہی ہے نا آپ کی جماعت. مرزا صاحب نے تو واضح کلیئر حکم دیا ہو کہ جو 3 ماہ نہ دے اس کو جماعت سے کہ نکال آپ دو. اگر چندے نہیں دے سکتے تو آپ، میں نے کہا نہیں میں چندے دوں گا، اور میں نے چندے دیے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے دیکھیں رضوان صاحب بات سن لیا کریں. بات یہ ہے کہ جب آپ کے نبی کا حکم ہے کہ 3 مہینے جو نہ دے اس کو جماعت سے نکال دو، تو اگر خلیفے آپ کو چھوڑ رہے ہیں 5 مہینے دینے کے باوجود بھی نہیں نکالتے جماعت سے تو اس کا اخراج مطلب ہے ایسے وہ ہو آپ ہی کے نہیں نبی سکتا. کے تعلیمات سے ہٹ گئے ہیں. جماعت سے اخراج ایسے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بہت بڑا کوئی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آپ کے مرزا صاحب کا حکم ہے اگر جماعت اخراج نہیں کرتی اس کا مطلب ہے وہ مرزا صاحب کی تعلیمات سے ہٹ گئی ہے. چندوں کے اوپر کبھی بھی اخراج نہیں ہو سکتا. ابھی ایک میں آپ کو بتاؤں، اخراج اس صورت ہوتا ہے یار حد ہو گئی ہے. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے غلط بات کی ہے کہ وہ جو انہوں نے کہا کہ 3 مہینے جو نہ دے ان کو نکال دو جماعت سے. ایسا نہیں، ضیاء بھائی جس ایسا نہیں بندے ہو کو سکتا. توحید کا ہی نہیں پتا آپ چندے اس کے کے ساتھ اوپر، باتیں چندے کے کر رہے اوپر ہیں. اگر کسی کو چھوڑیں اس کوئی کو بندہ نیچے گرا دیں. چندے کے اوپر اگر ایسے جماعت سے نکالنا شروع کر دیا پھر تو ہو گئی ہے. ایسا نہیں ہے. پھر تو وہ مرزا صاحب کے میرے بھائی مرزا صاحب، یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ دیکھ لیں جی. یہ ہے جی ضیاء لکھا صاحب ہوا، مین صاف صاف لکھا ہوا ہے. مین ایلیگیشن انہوں نے آپ پر یہ لگایا ہے کہ یہ صفحہ انہوں نے خود تیار کر لیا. نہیں میں نے سپا تیار نہیں میں ان کو ان کی ویب سائٹ سے دکھا دیتا ہوں صفحہ. ان کی ویب سائٹ سے دکھا دیتا ہوں میں نہیں تو صفحہ. یہ رضوان لکھا صاحب ہوا پھر ہے. آپ دیکھیں رضوان صاحب پھر ایسا تو نہیں کرنا چاہیے نا آپ کو. آپ یہ تو جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں تو آپ یہ تو نہ کہیں کہ علامہ ضیاء رسول صاحب نے خود اپنا کہیں انہوں نے میں نے اپنی زندگی کے اندر کتنی عمر ہوگی رضوان صاحب آپ کی کتنی عمر ہوگی یہ رضوان چندے صاحب؟ میں نے آج تک نہیں دیکھے، آج اچھا تک. چلے خیر آج دیکھ لیے نا، چلے ٹھیک ہو گیا. تو رضوان صاحب آپ کی عمر کتنی؟ رضوان صاحب عمر کتنی آپ کی رضوان صاحب؟ میری 43 44 کے تو آپ کے امی ابو بھی قادیانی تھے؟ سب اللہ کا شکر ہے سب. تو یہ سب سے پہلے کون ہوا آپ کا؟ میرے دادا، ہمارے دادا، میرے نانا اکیلے ایم ڈی ہوئے تھے. وہ کہاں تھے؟ قادیان میں تھے؟ فیصلہ آباد کے وہ امیر جماعت بھی تھے. نہیں تو پاکستان میں آ کر قادیانی ہوئے تھے؟ پاکستان، میرے انڈیا سے دادیال تو میرا پاکستان سے ایم ڈی تھے، اور میرے نانا وغیرہ. آپ قادیان شہر کے تھے؟ نہیں وہ پیچھے سے ہوشیار پور کے تھے. اور کراچی میں ہم لوگ واپس جب ادھر آئے ہیں فیصلہ آباد سے پھر ہم کراچی شفٹ ہوئے. میرے والد نے کراچی میں اسٹڈی کی. وہ اچھا ہالینڈ میں عیسائی کتنے ہیں؟ بہت ہیں. تو کتنے عیسائی آپ نے قادیانی کیے؟ کافی کیے، میں نے نہیں کیے. میرے بھی ایسا آپ نے کیوں نہیں کی؟ آپ نے کیوں نہیں کیا؟ اب ہم لوگ کے ہر مہینے ہم لوگ اپنے کیا نام ہے ہمارے پمفلیٹ وغیرہ ہم لوگ جاتے ہیں، لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں، جاتے ہیں کرتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ چرچ میں جاتے ہیں؟ حضور سے ایک دن میری بات سنیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے سوال کیا، میں نے خود سوال کیا امیر صاحب سے، امیر صاحب یہ ہم لوگ یہ ہر مہینے جاتے ہیں یہ جو تبلیغ، کدھر جاتے ہیں آپ؟ یہ کافی شہروں میں جاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں، اسٹال لگاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اسٹال کافی اس پہ. تو اس میں کیا نام ہے کوئی قادیانیوں کتنے لوگ جو ہیں وہ ایم جی جنہوں نے امیر صاحب یہ جو آپ کے اسٹال، اچھا جو اسٹال بھی ہے نا وہ مرخل ایک جگہ کسی جگہ لگتا ہے، وہ آپ فوٹو لے کر پھر اسی کو لگاتے رہتے ہیں ایسے ہی؟ ادھر لندن میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایک جگہ لگایا چھوٹا سا اسٹال، ایک ٹیبل لگایا تو پھر اس کو شو آف کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، پمپلیٹ ہوتے ہیں پورے ہمارے، پورا جو ایک حلقہ ہوتا ہے سارا وہ جاتے ہیں دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تبلیغ. اچھا تو لٹریچر آپ کتاب آپ خود پڑھتے ہیں؟ کتنی کتابیں آپ نے 23 والیوم سارے پڑھ لی ہیں آپ نے؟ 44 ایئرز ہو گئے نا آپ کو؟ جی بالکل. تو سارے والیوم ایک دفعہ پڑھ لیے آپ نے؟ نہیں اب جتنا جس ٹائم پہ دیکھیں ہر انسان کی اپنی اپنی کتنی زندگی پڑھ لی؟ کتنے پڑھ لیے آپ نے؟ اور بھی کتنے پڑھ لیے؟ میں بولوں کہ میں نے بڑی کتابیں چاٹی ہوئی ہیں ایسا بات. ضیاء صاحب کیا مرزا صاحب کا کیا جو 3 دفعہ نہیں پڑھتا وہ کیا ہو جاتا ہے ضیاء صاحب؟ ضیاء صاحب جو 3 دفعہ نہیں پڑھتا، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کے ایمان میں مجھے شبہ ہے. اب جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ جماعت کو پڑھنے نہیں دیتے، بالکل ٹھیک بات ہے. اب انہوں نے کیا کام کیا، نیا جو ایڈیشن انہوں نے شائع کیا نا اس میں سے یہ فکرہ ہی بدل دیا اور اس میں لکھ دیا کہ جو 3 بار کتابیں نہیں پڑھتا اس میں ایک قسم کا کبر پایا جاتا ہے. پہلے مرزا صاحب نے یہ لکھا تھا پہلے والے ایڈیشن میں، یہ ہے کہ اس کے ایمان کے متعلق مجھے شبہ ہے. بس چینج کر دیا. نہیں دیکھیے آپ پیدائشی قادیانی ہیں اپنا محترم رضوان صاحب. 44 ایئرز آپ 40 سال تو بندہ میچورٹی کی. اب انتاب تو آپ کا ڈکلائن 40 کے بعد تو بندہ نیچے جاتا ہے نا. تو آپ ایک دفعہ بھی نہیں پڑھ سکے پورا لٹریچر؟ لٹریچر تو کافی پڑھے ہیں، ایسی بات نہیں. مرزا صاحب کی کتابیں جو ہیں کتابیں میرے گھر میں پڑھی ہوئی ہیں. پڑھتے کیوں نہیں آپ؟
पढ़ते भी हैं, सब कुछ करते हैं, मगर घर जिंदगी में कितने वॉल्यूम है, घर में कितने वॉल्यूम आपके? और कितनी इंसान की मसरूफियात भी होती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने आपसे ये बात तो की नहीं कि मैंने बड़ी तो मिर्जा साहब तौहीद के बारे में क्या लिखते आप हैं? आपसे बैठो और तौहीद के ऊपर आपसे बात करो। मैंने जो 2-3 बातें नहीं रिजवान मोहतरम उसको नहीं क्लियर करना चाह रहा हूँ नहीं, कि अब वो करते हैं यार, वो तो इंतजामी, ये गलत है बिल्कुल। देखिए वो इंतजामी मामलात हैं रिजवान। तहरीके जदीद है चंदा, तहरीके जदीद मेरी अर्ज तो सुन लेना। जिया साहब आपको क्या प्रॉब्लम है चंदे से? जिया साहब क्या प्रॉब्लम है चंदे से आपको? और नहीं, उनको तो चंदे से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चंदे से मुझे ये आप प्रॉब्लम मैं आपको है एक बात बताऊं कि ये देखिए टाइटल दिया हुआ है लाजमी चंदा की फर्जियत। पहला प्रॉब्लम देखें, रिजवान साहब बात भी सुन लिया करें मोहतरम, आपकी बात हम सुनते हैं, आप भी सुन लें। लाजमी चंदा की फर्जियत, देखें किसी अमर को फर्ज करना ये तो किसी पैगंबर के इख्तियार में भी नहीं है। मिर्जा साहब को किसने इख्तियार दे दिया जो कहते हैं मैं तो जो है वो शरीयत में कोई एक शोशा भी ऊपर नीचे नहीं करने आया? ये चंदा इन्होंने कैसे फर्ज कर दिया? लाजमी चंदा की फर्जियत। अब आगे सुने जरा गौर से, जो आप कह रहे थे ना मैंने 5 महीने नहीं दिया, जो शख्स 3 माह तक चंदा अदा ना करेगा इसका नाम सिलसिला बैत से काट दिया जाएगा, और इसके बाद कोई मगरूर और लापरवाह हो इस सिलसिला में हरगिज ना रह सकेगा। गोया 3 माह तक चंदा ना देने वाले के मुतल्लिक हजूर का इस कदर सख्त अंदाज है कि वो सिलसिला बैत से कट जाता है। चे जाए कि जो शख्स इससे ज्यादा कई माह या कई साल से चंदा का तारक या बकायादार हो, ऐसा शख्स अपने मुतल्लिक खुद गौर कर सकता है। अब आप सुने अगली बात, कहते हैं ज़ाहरी तौर पर अगर कोई शख्स जमात से खारिज ना भी हो, लेकिन खुदा ताला के हुजूर इस कुताही की पदाश में इसका नाम सिलसिला बैत से कट जाए तो ये अमर इसके लिए इरशाद खुदाबंदी खसरुद्दुनिया वल आखिरा के मुताबिक सख्त नुकसान और खसरान का मुजब है। वो कहता है जी अगर कोई 3 महीने से ज्यादा नहीं चंदे देता ना तो ज़ाहरी तौर से अगर जमात ना भी उसको खारिज करे, खुदा ताला उसको जनाब जमात से खारिज कर देता है। आप क्या बात करते हैं? ये रिजवान साहब पे अप्लाई होता है या नहीं? रिजवान साहब ये चीजें आपने पढ़ी? रिजवान साहब नहीं, रिजवान साहब एक मिनट, रिजवान साहब बोलने देते हैं, आपको बोलने देते हैं। आप आए हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरे राइट्स मिलेंगे। आपने ये चीजें पढ़ी जो जिया साहब कह रहे हैं? अपने एक तजर्बा शेयर करता हूँ कि आपने ये चीजें पढ़ रखी हैं जो जिया साहब कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, मैं कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आप बोले, ठीक है। अब आप बोले। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा इतना ईमान है चंदों के ऊपर, यकीन माने कि मेरी गाड़ी की बैटरी ना खराब हो गई थी, तो वो बहुत महंगी आ रही थी, तो कोई ऐसे 12-14 हज़ार की आ रही थी, तो मैं बड़ा परेशान था। मैंने कहा यार इसकी बैटरी खराब हो गई। अब यकीन मैंने रात को ऐसे मैंने सदका दिया और मैंने वो चंदा दिया है, सुबह जाके मैंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी सही हो गई। अल्लाह ताला मदद करता है। देखिए इंसान का ईमान होता है। ये तो निशान हो गया शाह साहब। ईमान साहब ये तो कोई बात भी नहीं है। एक बंदे की आपकी जमात में से एक बंदे की टांग जो है टूट गई थी, 2 टोटे हो गई थी अलग अलग, तो वो जनाबे अली जा रहा था उधर, क्या उसको कहते हैं, हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, तो पैसे नहीं थे उसके पास, तो वो 500 रुपया था। उसने सोचा भी इससे इलाज तो होना कोई नहीं, तो क्यों ना हो मैं चंदा दे दूं। उसने जनाब वो रास्ते में ही वो चंदा दे दिया, जनाब जमात के नाम भेज दिया कि ये 500 जमात को दे देना चंदा, मेरे पास तो है नहीं इलाज के, हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो ठीक है। वो बंदा हॉस्पिटल जाने से पहले टांग उसकी खुद ब खुद जुड़ गई थी। सर असल आपका तो सिर्फ बैटरी सही हो गया, इसकी टांग जुड़ गई थी। आपकी बातों पे जो दूसरे भाई बात कर रहे हैं वो उनकी बात में थोड़ी एक तहजीब भी नजर आ रही है। आप जो बात कर रहे हैं ना वो एक सवाल है, वो सीधी बाउंसरें लग रही हैं, उसका कोई वजूद नहीं है। ये बाउंसर आपके जमात के जो सबसे बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती मुबशर कालो साहब, उन्होंने ये बाउंसर मारा है, मैंने नहीं मारा। बारी बारी बोल, खानदानी नजर नहीं आ रहे, पता चलना है वो बात करते हुए उनकी बात में कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, और अपनी बात रख भी रहे हैं। आप पता नहीं किधर से उठा के लेके आ रहे हैं, मुझे बाउंसरें पड़ रही हैं, यकीन मैंने समझ नहीं। रिजवान साहब बहुत अच्छा, मुझे भाई एक सवाल पूछना मैंने आपसे, अगर आप जवाब देना चाहें तो। आपको पता है क्या तो मैंने ये तो बताएं पहले। मैं क्या करता हूँ? डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ, पता नहीं किधर असल देखे रिजवान साहब सादा आदमी। आप साकी साहब इसमें से आप चीजें अखज करें ना, देखिए अच्छा रिजवान साहब इसका मतलब आप करामात अपना एक तजुर्बा शेयर किया, मेरी अर्ज तो सुन लेना। अल्लाह ताला ने देखो मेरा इतना ईमान है। नहीं मैं आपका ईमान बड़ा पुख्ता है। मैं इससे मैं 2 जुमले अर्ज कर दूं फिर साकी साहब बोले। इसका मतलब आप करामात के कायल हैं? जी बिल्कुल हैं जी। तो मौजूदात के मुनकर क्यों हैं आप?
नौज़ाद के क्यों? देखें ना, बगैर किसी यानी गाड़ी की बैटरी ख़राब होगी, मुमकिन है उसके अंदर वो जो पानी है वो कम हो गया हो या कोई और मामला हो, तो चाहिए तो ये था कि इसको जाना था, चाहिए था किसी गैरेज में, तो आपने चंदा दिया, वो चल गई। मसलन करामत के आप कायल है, लेकिन अंबिया के जो मौजज़ात है, मेरे अर्थ तो सुने ना, बता दूं जब ये देखें, मैं आपका चंदा जो है अगर बैटरी दुरुस्त कर सकता है तो अल्लाह ताला अंबिया को मौजज़ात क्यों नहीं दे सकता? अपना ज़िया साहब, आपने इसमें से देखें कितनी उन्होंने हमें पते की बात बताई है। तो शाह साहब इसका जवाब है, इसका जवाब ये है। बात उनकी ठीक है। रिजवान भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप इजाजत दें तो? मुझसे आप सवाल नहीं पूछे, मैं तो एक बात कर रहा हूँ जो मैंने जो अपनी जिंदगी के अंदर देखा ना, तजर्बा मेरी जो जिंदगी का है, मेरी जो उम्र में मैंने अपने साथ जो चीजें देखी, मैं वो बयान कर रहा हूँ। अच्छा, कोई इल्हाम होगा? चले ठीक है, आप ना, मैं तो सिर्फ जो बात हो रही थी मैं उसको सुनने के लिए आया था, बाकी आप लोग चले रिजवान भाई ठीक है, आपकी बात ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, आपके साथ ज्वाइन हुआ, आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। रिजवान भाई बात सुने, आप ना, आप मेरे इल्म में थोड़ा सा इजाफा कर दें, आप मुझे काफी नॉलेज वाले बंदे लग रहे हैं। नहीं सर, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मैं चले इतना तो आपको नॉलेज जरूर होगा, आप जमात अहमदिया से तल्लक रखते हैं, तो गुस्ल का तरीका आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं बता सकते, बताएं जरा। गुस्ल के फर्ज कितने होते हैं? कर रहे हैं जो बच्चा एक बहुत छोटा सा होता है ना गुस्ल। अच्छा चलें, गुस्ल के फर्ज बताएं कितने हैं? 3 फर्ज हैं वो। अब ये आप कैसे सवाल कर रहे हैं? आप बोला अब ये तो बच्चों वाले आप उससे सवाल कर रहे हैं। ये यार मुझे नहीं पता ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ भाई। यार नहीं करो यार इस तरीके से, इस तरह नहीं होता कि गुस्ल के फराइज, तो बच्चों वाले सवाल है। नहीं तो पता नहीं है, अगर बंदे को तो पूछने में इसमें शर्म कैसी? अपनी जिंदगी में देखा मैंने, वो बात नहीं की आप झूठ बोल रहे हो, वो बात मैंने नहीं की। मैंने बोला यार मैंने ये चीजें अपनी। चले साकिब साहब छोड़ दें इस बात के सवाल तो बच्चे से पूछेंगे, मेरा छोटा बच्चा जी ठीक है, साकिब साहब छोड़ दें, जरा खामोश हो, आपको बता देगा। अच्छा चले रिजवान साहब, बच्चों वाली बात। अच्छा रिजवान साहब बात सुने, अकीदा तौहीद तो बच्चों वाली बात नहीं। मैंने आपसे वो बातें ही नहीं की ना, मैंने तो आपसे यार कर लेते हैं ना, कोई नहीं। रमजान शरीफ देखें, रमजान शरीफ के बारे में आपसे सवाल किया ना किसी बात, मैंने तो ये बात की कि ये जो भाई ने बात की, अच्छा वो हो गया, खत्म हो गई ना बात, छोड़े साकिब साहब। हजरत अली हजरत उमर रिजवान साहब छोड़ दें यार उस बात को, छोड़ दें। और बाकी दूसरी जो मुरब्बी घर में घुस गए और वो छोड़ दें, चले वो खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा रिजवान साहब, मैंने इन बातों पे मैंने आप जी हो गया, वो तो खत्म हो गया। रिजवान साहब की देर से मैं आप लोगों से बात कर रहा था, ओहो यार, अभी भी सुनूंगा। अच्छा नहीं, अकीदा मैं आप लोगों की बातें सुनूंगा, जहाँ मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ये बात सही नहीं है, तो मैं उसमें बड़े तहजीब के दायरे के अंदर रह के आप लोगों से उस यार आप आए तो कुछ हमें भी बता जाएं। गुस्ल ये चीजें ना मैं अच्छा नहीं छोड़ देते, गुस्ल छोड़ दिए। अच्छा अपना अकीदा तौहीद के बारे में तो आप छोड़ दो इस चीज को ना मैं आपसे गुस्ल के तरीके पूछने आया हूँ। तो मेरा ईमान मेरे साथ है, आपका ईमान आपके साथ है, ठीक है। आप बहुत आलिम होंगे, मुझे इस चीज से नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो चीज। अच्छा चले ये बता दें कि मिर्जा साहब का दावा क्या था? यार मैं आपसे सवाल जवाब तो करने ही नहीं आया ना, मैंने आपसे किया, मैंने आपसे बोला मैं सवाल जवाब। नहीं, आप मिर्जा साहब को क्या मानते हैं? मिर्जा साहब का आप क्या मानते हैं? चले मिर्जा साहब के दावे को छोड़ो, आप अपना बताएं, आप मिर्जा साहब को क्या मानते हैं? आप मुझे नीचे उतार दे प्लीज, सॉरी। की करे बनता है खुद तशरीफ ले जाए रिजवान साहब। यार आप तो सादा, ठीक है आप चले जाएं अगर आप जाने चाहते हैं। अच्छा रिजवान साहब, ऐसी जमात है तो ना तबलीग करती है ना करती है। छोटा सा एक बता दिया शाह साहब, एक बंदे ने 42 साल गुजारे हो जमात में और उसको इतना ही ना पता हो कि मैं मान क्या रहा हूँ, तो फिर उस बंदे से हम क्या बात करें? यार आप सारे खामोश हो ना, जरा खामोश हो। मैं क्या मानता हूँ या आप क्या मानते हैं? अच्छा खामोश हो जाए सारे, तो आप मुझसे सवाल करें। अच्छा रिजवान साहब बात तो सुने यार, आपका मैंने आपको शुरू में आसान छोटा सा बता दिया। नहीं बस इतना शाह साहब, इनको पता है कि चंदा देने तो उससे बैटरी ठीक हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 3 4 जिम्मेदारियां, मेरी बेटी के पास भी 3 जिम्मेदारियां, मेरे बच्चे भी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बस इतना पता है। हर बंदे के पास नॉलेज होती है, मगर नॉलेज उस जगह इस्तेमाल की जाती है जहाँ कोई आप। मैंने आपको बताया हम लोग तबलीग करने जाते हैं, हमने सवाल किया कि हमें तबलीग करें ना रिजवान साहब, हमें तबलीग करें। आप अपने हिस्से का काम करते रहे, हिदायत देने का। अच्छा रिजवान साहब हमें तबलीग कर जाए। नहीं कि तबलीग तो उस जगह करेंगे, कभी आपकी ब्रॉड पे आता रहूंगा, मैंने फॉलो कर लिया, आपको मैंने फॉलो कर लिया, मैं आता। मेरी बात तो सुने जब तबलीग का टॉपिक आएगा ना, फिर मैं तबलीग भी करूंगा। आज क्या टॉपिक था? भी करूंगा, मैंने फॉलो कर लिया आप लोगों को। बाकी ये है कि
आते नहीं जाते मैं बताऊं आपको तौहीद क्या। अच्छा रिजवान साहब मैं बताऊं, बच्चों रिजवान के साहब लिए मैं बताऊं सारा तौहीद, सुन लें सर मेरी बात, मुझे मैं बता दूं तौहीद क्या का है। टाइम हो गया है, मुझे इस बच्चों का भी उठाना अच्छा है। जा ले ले बच्चों का। ठीक है, मेरी आपको बताया मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया, मुझे घर की सारी जिम्मेदारियां खुद निपटानी होती हैं। फिर कितने मेरी अरसा कितना अरसा हुआ है वाइफ का इंतकाल 5 हुए? साल हो गए हैं, 5 साल से मैं 2 जॉबें भी करता हूँ और बच्चों को भी संभालता हूँ, बच्चों की आपकी स्टडी। जमात ने कोई इंतजाम नहीं किया आपका? नहीं, मेरा खुद इरादा नहीं है तो मेरी जमात क्या, मेरे अपने खानदान के लोग मर गए हैं कि मैं जमात से जाके राब्ता करूंगा कि मेरी शादी कराओ। मेरे अपने खानदान में बहुत लोग हैं, तो मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे अच्छा माशाल्लाह, मेरी बच्ची मेडिकल कर रही है, मेरे बच्चे माशाल्लाह, एक बेटा मेरा आईटी कर रहा है। अब मैं उनकी स्टडी पे मैं अपने फोकस किया हुआ है। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे मैं अपने घर के माहौल को चेंज करूं कि जिसकी वजह से मेरे बच्चों की स्टडी या किसी नहीं, की। लेकिन अकीदा तौहीद तो बंदे को आना चाहिए। यार आप इस चीज़ों को छोड़ दो, वक्त आने पे ये भी बता दूंगा मैं आपको, क्यों अभी नहीं दूसरे पता तरीके ही आपको? बता दूंगा। शाह साहब इनको क्या बहुत बताएगा टाइम दे, वो आपको, मेरा तैयारी बेटा करके आएंगे बताएगा, अगली दफा। अगली दफा वो तैयारी करके आएंगे। मेरा बेटा अभी छोटा है सबसे, अभी जो 12-13 साल का, वो आपको इन सवालों के जवाब देगा। मुझे तो आप क्यों नहीं देंगे? हाँ, वो देगा आपको, ये वक्त नहीं आने पे दूंगा मैं। नहीं मैं अभी टॉपिक पे आया नहीं। रिजवान साहब ये नीचे नवीद अहमद भाई हैं, वो मशवरा दे रहे हैं कि आप चंदा दें, ज्यादा हो सकता है आपकी वाइफ वापस आ जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, मुझे जी निशान हो सकता है ना, कोई भी आप कुछ ये भी हो बताएं, सकता है। आपका ऐसा अकीदा है चंदा देने पे वाइफ वापस आ जाएगी? आपका अकीदा है ऐसा? मुझे ये बताएं। नहीं नहीं, हम तो चंदा वैसे नौकरी सही हो सकती है तो वाइफ क्यों नहीं वापस आ सकती भाई? सवाल तो और हमारा जिया है। भाई, आप जितना ये बंदा बोलता, मुझे तो लगता है इसने बोल बोल के ही मार दिया भाई। तो बस यार बंदा। कैसी जेन साजी हुई भी है इन लोगों की। अच्छा कीदा तौहीद दा पता नहीं ते उंज पक्का जमात दा। जा तेरा भला हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सिर्फ कॉल ते इसलिए आया शाह जी, यह वीडियो जरा ना प्लीज दे देना। जरा निशान दे के गया ना, चंदा देन तो बाद बैटरी ठीक हो गई, चाहिए बस मेहरबानी। रिकॉर्डिंग निकाल लेंगे, रिकॉर्डिंग। हाँ बस मेहरबानी अल्लाह प्लीज। अकबर। शाह साहब देखे ना, ये कैसे अहमक लोग हैं कि अंबिया के मोजजात को नहीं मानना और चंदा दे के बैटरियां ठीक कर लेते हैं। नीचे ट्रुथ सीकर साहब है, वो कहता है मौजूद मानते हैं, तो मैं तो नहीं सुना कि ये को मौजूद मानते हैं। नहीं मानते। ट्रुथ सीकर साहब ऊपर है ना, ये नीचे कमेंट में मान रहा है, ऊपर आएंगे ऊपर आके नहीं मानेगा। ट्रुथ सीकर साहब आए ना, बताएं कौन से मौजूद आप मानते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम के तो एक मौजूद भी नहीं मानते आप। नहीं उनके नहीं, ये बस वो मुबशर कालम जो बताता है वही मानते हैं। तो टांग टूट गई, वो जुड़ गई सी ते यार नमाज के लिए पैसे नहीं आए। अब आप देखें रिजवान साहब की बात से आप एक तो फायदा उठाएं कि वो कह रहे हैं कि मेरी रात बैटरी ख़राब हो गई। लाज़िम बात है, जो बैटरी ख़राब होने का मतलब ये है कि उसके अंदर या तो वो क्या कहते हैं जो तेज़ाब डालते हैं या कोई कमी रह गई होगी। अब देखिए इनको अपनी ज़ात पर और चंदे पर इतना यकीन है। वैसे तो ये कहते हैं जी बग़ैर सबब के तो कुछ होता ही नहीं। अब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग जो है, या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, तो इनकी जमात के लोग कहते हैं जी वो इसलिए हुई थी कि बारिश हो गई थी। यानी बग़ैर किसी सबब के ये मुमकिन नहीं है। लेकिन देखें आपने रिजवान साहब ने बग़ैर सबब के ना वो गैरेज में ले गए, ना किसी कारीगर को दिखाया, रात बैटरी ख़राब थी, चंदा दिया तो सुबह बैटरी दुरुस्त हो गई। तो ये देखिए ये है वो तंग नज़री। और वो अब मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ कि वो जो मतलब खोपड़ी पर जो भी आप सर बढ़ता ही नहीं है, उसी में वो बेचारा रहता है। और अंबियाए कराम की जब बात आएगी तो फिर यानी सालेह अलैहिस्सलाम का मौजज़ा भी गया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मौजज़ा को भी नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात के तो ये वैसे ही मतलब हद दर्जे के मुनकिर हैं, कोई नहीं मानेगा उसको। तो ये हम दावत फ़िक्र थी। और इनकी गुफ्तगू से भी जो बात अखज़ की है वो ये है कि अपने मन पसंद ये चीज़ें मानते हैं। ना मानने पर आए तो अपनी करामत मान लें, अब मानने पर आए तो अपनी करामत मान लें, ना मानने पर आए तो अल्लाह के उलुल अज़्म अंबियाए कराम के मौजज़ात का इनकार कर दें और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज का भी इनकार कर दें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिज़िकली नहीं थे, कश्फी
अब बैटरी माने ना कश्फी है बैटरी या फिजिकल थी? जी जनाब, ये देखिए, ये आपको एक यानी एक सैंपल आपको मिला कि ये लोग इस तरह भी करते हैं। जी हजरात बोलिए किसी और ने। ट्रूथ सीकर साहब यार जी थल्ले ट्रूथ जी सीकर साहब मैं शाह आपको जी एक मिनट, शाह जी एक मिनट रुके, मैं जी जरा जी जी इनको तो सिकर साहब, मिर्जा साहब ने क्या आपको वसीयत लेके दी कि हर ब्रोड पे जाके नीचे बैठ के झूठ ही बोलना है आपने? वो मरना नहीं है, कब्र में अपनी में जाना है। मिर्जे तो जितर छितर फेरी रहने, अपना ही सोच लो, खुदा दा नाम मान ला तू हर ब्रोड ते जिथे भी कोई गल हो रही दीन इस्लाम दी, नीचे तू अपनी फिलासफरी छड़ रहा हुंदा। खुदा दा नाम मन, किसी टाइम तो कोई चज दी गल कर लिया कर। क्यों अपनी आखरत खराब कर रहे हो? झूठ बहतान तो अलावा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ नहीं है। नहीं मेहर उमर साहब हो रहे ना हो रहे, इस तो ज्यादा किड़ी आखिरत खराब हो रही है ना दी। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह शाह माफ करे। साहब शाह साहब ये जो बैटरियों की बात का ये सुना के गया है ना ये बंदा, ये तो इम्पॉसिबल है ना। मैं इसको खराब बैटरी देता हूँ, बेशक खलीफा साहब आके अपनी अंगूठियां भी लगा लें, कभी भी नहीं स्टार्ट होगी गाड़ी। साकिब भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वर्कशॉप है, मैं 16 साल मैनू टोटल 20 साल ਹੋ ਗਏ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਸੁੱਕੇ ਸੂਰਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਧੱਕੇ ਲਾਣ ਨਾ, ਉਨੀ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇਹ ਉਮਰ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਾਹਿਲ ਬਸ। ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦਬਾ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬਈ ਉਹਦੀ ਕੰਮ ਗੱਲ ਚੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਕੁਝ ਪੜਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। ਉਹ ਪੜੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। अच्छा यार ट्रूथ सीकर साहब ऊपर आ रहे हैं तो कोई जी जी तंग ना आज करे इनको, ठीक है जी। नहीं 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 तंग नहीं करते आज भी हाँ पूरा। ये एक मुलहम साहब आए हैं जनाब, जिया साहब मुलहम साहब आए हैं, जरा मैं माइक बंद करता हूँ जरा।